Okay, now we will discuss about the next one concept, marginal utility analysis and consumer equilibrium. We know very well now about the meaning of the utility, total utility, marginal utility, as well as the consumer equilibrium. Now the question arises how we can measure the level of the consumer equilibrium using utility analysis. As per the concept or the approach given by the Marshall, we can use the marginal utility analysis in order to measure the consumer equilibrium. And as the approach given by the Hicks, we can measure the level of the consumer equilibrium using the indifference curve analysis. So today we will discuss about the marginal utility analysis, how to measure the level of consumer equilibrium using the marginal utility analysis. Now the question arise, देखिए अब हमने सारे कंसेप्ट बेसिक स्टडी कर लिए. The question arise कि बताइए एक कंज्यूमर को कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने चाहिए कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लेवल को मैक्सिमाइज कर सके. Now the question arise how the consumer will get the situation of the consumer equilibrium and he will achieve the point of the equilibrium here. Here we can discuss this situation with the help of the two situations. The one thing, no doubt, अब consumer जो है वो single commodity consume नहीं करता, वो बहुत सी commodities consume करता है. So in this state, we will assume that Marshall has assumed or given the situation in the two level, two conditions कि जब पहला केस ये स्टडी करेगा कि जब कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, and second one concept when the consumer is consuming two or more than two commodities. So we will discuss regarding these two situations कि हम consumer equilibrium को prove करेंगे दोनों cases में, in the one commodity case and in the two or the more commodity case. The first one is there, that is the consumer equilibrium in one commodity case. तो मेनली यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जनरली जब भी हम कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं तो वो मेनली किस बात पर डिपेंड करता है. दीज आर द थ्री फैक्टर्स. सी दीज विच आर दैट फैक्टर्स. प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी, सबसे पहला फैक्टर क्या आ जाता है कि हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि कमोडिटी के प्राइस क्या है. सेकेंड वन, उस कमोडिटी की हमारे लिए यूटिलिटी कितनी है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द commodity, marginal or the total utility of the commodity. The third one is there, that is the marginal utility of money. So we will have to consider the three things in this situation: price of the commodity, marginal utility of the commodity, and marginal utility of the money there. These three basic things will be considered in order to determine the level of the consumer equilibrium. Now here we know very well what is the price of the commodity and the marginal utility of the commodity. So there is a question arise that what do you mean by the marginal utility of money? So we will discuss about that also कि marginal utility of money, मैंने आपको assumptions में बताया कि marginal utility of money को क्या किया जाएगा, constant लिया जाएगा. Now the question arises, what do you mean by it? कि money की marginal utility क्या है? Okay, so marginal utility of money simply refers to the worth of our currency. हमारी currency क्या है? Rupee. Try to understand it in a very deep manner. So marginal utility of money refers to the worth of a rupee. हमारे एक रुपये की, because of our currency is rupee. So simply we will measure the utility of money, the marginal utility of money in terms of rupee only. So marginal utility of money को हम क्या कहेंगे कि एक रुपये की वर्थ कितनी है एक कंज्यूमर के लिए. What is the worth of a rupee? तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी कि आपको, अब नो डाउट हम मनी को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं, हम मनी की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं जो हमें पसंद होते हैं, जो हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, राइट.
तो यहाँ पर क्या है कि अब एक कंज्यूमर के लिए वर्थ क्या है 1 रुपए की, वो क्या बताएगा? इट रेफर्स टू इट अल्टीमेटली डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ द यूटिलिटी। इससे अल्टीमेटली क्या पता लगेगा कि यूटिलिटी कितनी मिली आपको, कितनी यूटिलिटी मिली विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स यू कैन which you can purchase with the help of a rupee। कि सपोज 1 रुपए की हेल्प से हम 100 ग्राम शुगर परचेज कर सकते हैं या 500 ग्राम राइस परचेज कर सकते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके जो यूटिलिटी हमें मिली दैट विल बी टर्म्ड एज द वर्थ ऑफ ए रुपी। कि सपोज अब हम सिंपली यहाँ पर क्या कहेंगे कि 1 रुपी को हम गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म में रखेंगे। चाहे हमने कुछ भी खरीदा, सपोज हमने शुगर खरीदी, उस शुगर को कंज्यूम करके जितनी यूटिलिटी मिली दैट यूटिलिटी विल बी टर्म्ड एज द वर्थ ऑफ ए रुपी। कि उस रुपी में ऐसी कैपेसिटी है कि विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज, then by the consumption of that goods and services we will get the utility that is termed as the worth of that particular currency, right? यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि आज के टाइम में हम कहेंगे कि रुपी से तो कुछ खरीद ही नहीं सकते हम। यहाँ पर जो कंसेप्ट है दैट इज द वर्थ ऑफ ए सिंगल रुपी विल बी कंसीडर्ड इन ऑर्डर टू प्रूव द लेवल ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट? बट द सिंपल थिंग इज देयर कि अगर 1 रुपए की हेल्प से आपने ये चीजें खरीदी हैं और उन चीजों को खरीद कर आपको टोटल 4 यूटिल्स मिले हैं, तो वहां पर आप क्या कहेंगे? देन इट इज टू बी टेकन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और जनरली हर एक कंज्यूमर का एक प्रेफरेंस होता है कि जब भी वो किसी कमोडिटी को परचेज करता है, राइट, तो वो ये चेक करता है कि वो उसमें उतने ही पैसे खर्च करना प्रेफर करता है जितने की उस कमोडिटी को कंज्यूम करके उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। नो डाउट अगर मुझे एक चीज ज्यादा पसंद है और एक अनदर पर्सन हो उसे वो चीज पसंद नहीं है, तो मैं उस चीज पे ज्यादा पैसे भी खर्च कर दूंगी बिकॉज आई जस्ट लाइक दैट प्रोडक्ट, आई वॉन्ट टू परचेज दैट प्रोडक्ट। but the another one person who is not interested in that kind of product, तो उसके लिए वो वर्थफुल नहीं है, राइट? सो हेयर सिंपली हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी को हम एक मेजरिंग रोड लेके चलते हैं कि वो 1 रुपए की वर्थ को चेक करता है। और यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज जनरली assumed constant, क्योंकि एक तरीका, एक टूल है in order to measure the worth of the satisfaction in the terms of rupee। अब ये वैरी कर सकता है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, राइट? क्योंकि मे बी मेरे लिए एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे पर्सन के लिए वो नहीं है, तो दोनों के लिए यूटिलिटी मनी के टर्म में तो अलग अलग हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू रिमूव द कंफ्यूजन्स, यहाँ पर क्या किया गया है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट कंसीडर किया गया है। वी विल डिस्कस अबाउट द वन ऑफ द एग्जांपल हियर कि कैसे एक कंज्यूमर जो है यूजिंग द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस मार्शल अप्रोच, वो वन कमोडिटी केस में जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। ओके, सो लेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर इज 2 यूटिल्स। ठीक है, कि जब एक कंज्यूमर 1 रुपी स्पेंड करता है तो उसको 2 यूटिल्स मिल रहे हैं। ठीक है, द सिंपल थिंग कि जब हम 1 रुपी स्पेंड कर रहा है एक कंज्यूमर, तो उसको उस 1 रुपी स्पेंड करने पे उसका लेवल क्या है, वर्थ क्या है रुपी का? 2 यूटिल्स। अब एक कंज्यूमर है, वो एक्स कमोडिटी को परचेज करना चाहता है और उसका प्राइस है 4 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कंसीडर किया जाएगा कि उस कमोडिटी को कंज्यूम करके उस कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है। सपोज अब वो कंज्यूमर क्या कर रहा है, उसने उसकी फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया तो उसको 20 यूटिल्स मिले, सेकंड पे 18, थर्ड पे 16, फोर्थ पे 8, फिफ्थ पे 0, सिक्स्थ पे -5 एज पर द बिहेवियर ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। वी नो वेरी वेल कि वो रिड्यूस करती जाती है, फिर 0 हो जाती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। सो वी नो वेरी वेल कि 2 यूटिल्स जो है वो 1 रुपी के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? वी कैन एक्सप्रेस द मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी ऑल्सो।
तो यहाँ पर देखिए अब हमें रुपए की टर्म में कितनी वर्थ मिल रही है, देखिए ध्यान से। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर देयर, हम चेक करेंगे ना कि वो कितने पैसे जो है वो स्पेंड करेगा। ये यूनिट्स है 6, मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता लग गई। ओके, अब बताइए मनी 1 रुपये उसका 2 यूटिल्स के बराबर है। ओके, तो अब यहाँ पे उसको कितने यूटिल्स मिले? 10, 20/2, 10 रुपीज के बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। फिर उसको सेकंड में 9 रुपीज के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रही है। थर्ड में उसको 8 रुपीज के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रही है। देन इन द फोर्थ टर्म उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है? 4 रुपीज के बराबर। हेयर द 0 रुपीज, हेयर द नेगेटिव। सो एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए कंज्यूमर, मतलब अब हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि कंज्यूमर को कितनी यूनिट्स परचेज करनी चाहिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए? क्या वो फर्स्ट यूनिट परचेज करेगा? यस, 100% करेगा। रीजन, उसको वहां पर कितने स्पेंडिंग करनी पड़ रही है? उसका स्पेंड तो हो रहा है 4 रुपीज, उसको वर्थ मिल रही है 10 रुपीज की। 10 रुपीज की वर्थ मिली, स्पेंडिंग उसने 4 रुपीज की है, तो उसको 4 रुपीज तो कम देने पड़ रहे हैं ना जितनी की उसको यूटिल्स मिल रहे हैं। क्वेश्चन अराइज, क्या वो सेकंड यूनिट परचेज करेगा? यस, वो सेकंड भी परचेज करेगा। वाई? क्योंकि उसको वहां पर कितने रुपए की वर्थ मिल रही है? 9 की, जबकि उसने 4 रुपीज स्पेंड किए, 4 भी लेस है। इसी तरीके से वो थर्ड करेगा? यस करेगा। फोर्थ करेगा? यस करेगा। वो कहाँ पे स्टॉप करेगा? जब उसको उससे मिलने वाली यूटिलिटी रुपए की टर्म में जो प्राइस वो खर्च कर रहा है उसके ऊपर, हेयर एट द पॉइंट ऑफ द लेवल ऑफ फिफ्थ यूनिट, यहाँ पर वो क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। 4 यूनिट तक उसने जब खरीदा तो उसको 4 रुपीज के बराबर तक की यूटिल्स मिल रही हैं। जितना पैसा वो उस पर खर्च कर रहा है और जितनी सेटिस्फेक्शन उसे उससे मिल रही है वो उसे इक्वल हो गया। अब अगर वो अगली यूनिट खरीदेगा उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन तो उसे है ही नहीं, तो वो पैसे उस पर क्यों खर्च करेगा 4 रुपीज? नो नीड टू स्पेंड। सो हेयर द कंज्यूमर विल परचेज अप टू द यूनिट्स ऑफ 4। देखिए इसको हम अब एक डायग्राम के हेल्प से कैसे प्रूव कर सकते हैं। सी दिस, the consumption of the commodity is taken as the horizontal level, this is right। वर्टिकल लेवल पे क्या किया गया? मार्जिनल यूटिलिटी को ले लिया गया और साथ में हमारे प्राइजेस ले लिए गए, एमयू एंड प्राइस। हमारा एमयू कैसे बिहेव करता है? रिड्यूसिंग जा रहा है ऐसे। हमारे प्राइजेस जो है वो कांस्टेंट है 4 रुपी। तो जहां पर प्राइस और उससे मिलने वाली यूटिलिटी बराबर हो जाती है वहां पर क्या होगा? दैट इज द पॉइंट ऑफ द equilibrium, that is the point of equilibrium which is known as point of equilibrium, जहां पर आपका जो प्राइस है और उस प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी है वो बिल्कुल बराबर हो जाती है। क्योंकि इसके बाद अगर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उसको मिलने वाली यूटिलिटी जो है उसके प्राइस से कम है, तो वो उतना पैसा उसके ऊपर स्पेंड नहीं करेगा। बट यहाँ तक जब वो स्पेंडिंग कर रहा है, यहाँ पे वो जितना पैसा स्पेंड कर रहा है उसको मिलने वाली यूटिलिटी उससे ज्यादा है, राइट। तो यहाँ तक वो पॉइंट पे स्पेंडिंग करेगा, रेस्ट वन पोर्शन में वो स्पेंडिंग करना बंद कर देगा। तो कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम पे आ रहा है? अप टू द लेवल ऑफ द 4 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर परचेज्ड, उसके बाद उसने परचेजिंग करना बंद कर दिया। ओके, सो यहाँ पर हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे डायग्राम की कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होती है। पीएक्स प्राइजेस को शो कर रहा है जो कि कांस्टेंट है, 4 रुपीज के इक्वल लिया गया है। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो मनी के टर्म में दिया गया है कि मेनली कंज्यूमर कितने पैसे देने के लिए राजी है एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? एट द पॉइंट सी, जितना कि जहां पर जो है वो एग्जैक्ट उस प्राइस के ऊपर आ गया है और जितनी उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो बिल्कुल बराबर हो गई। दिस इज द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड द एक्सप्लेनेशन। ओके, so this was the case of consumer equilibrium under one commodity.
with the help of which we can say that we can prove that कि कंज्यूमर अगर वन कमोडिटी परचेज कर रहा है तो वो उस समय कैसे इक्विलिब्रियम की स्टेट को अचीव कर सकता है.